हेलो माय डियर स्टूडेंट्स। सो आज हम करेंगे टॉपिक एसिड्स, बेसिस एंड सॉल्ट्स। सो फर्स्ट ऑफ ऑल व्हाट विल वी डू? We will try to understand the various concepts involved in explanation of acids and bases. Like there is classical concept, means which is original concept. What are basically acids and bases are. Then we have Arrhenius concept, then we have Bronsted-Lowry concept, then we have Lewis concept. So these four concepts are there when we explain the acids and bases, means what they actually are. So you should try to understand these concepts so that whenever they are asked or you are asked to attempt in that way, in that particular concept, then you should not be confused, because I have seen many times most of the students forget the various types of concepts. They intermingle them in the mind and their answers are marked wrong. So what is required is to understand these, the difference between these four, so that we are able to critically discriminate and critically differentiate the difference between these concepts. So we have four concepts related to acids and bases. First one is classical concept, right? Second one is Arrhenius concept, then Bronsted and Lowry concept, then last one is the Lewis concept. So students, let us start with our topic and you concentrate on whole of the topic so that you can understand it well. So I am myself Professor Rana. Okay, so you are attending Rana sir's classes. Okay, we have also branches of our academy, Success Point Academy. So now we will try to understand the concepts, and these acids and bases concepts are very important for UPSC as well as SSC as well as NEET exam as well as JEE exam, because they form the basic understanding related to acids and bases and salts. So let us start. So hello students, now we will try to understand the classical concept first. What it states, classical concept, ठीक है? Classical concept में है क्या? Acid is a substance whose aqueous solution, note रखिएगा, acid is a substance whose aqueous solution has following characteristics, means it is sour in taste, right? खट्टा होता है acid generally, and it conducts electricity. Its solution conducts electricity, ठीक है? When the electricity is passed through an acidic solution, it allows the passage of electricity. तो ये इसका बेसिक चीज है. Third is it turns blue litmus, अगर उस पर आप एसिड लगाइए तो it turns to red. ये क्लासिकल कंसेप्ट कहता है. And what it states about base, base is a substance whose aqueous solution has following characteristic, means उसका aqueous solution कैसे behave करेगा? It is bitter in taste, कड़वा, bitter in taste, right? Second, has a soapy touch, जैसे साबुन लगाते हैं थोड़ा स्लिपरी हो जाता है. सो बेस की यही निशानी है, it has a soapy touch. And third, it turns red litmus blue, ठीक है? जब भी इसको लिटमस पेपर पे डाला जाएगा रेड, the litmus paper will be changed into blue color, ठीक है? ये था अपना क्लासिकल कंसेप्ट. मींस ये सिंपली फिजिकल फीचर्स हैं, आप देख के टच करके उसको टेस्ट करके यू कैन इजीली टेल कि ये एसिड है कि ये बेस है, राइट? नेक्स्ट कम्स Arrhenius concept. अब ये जो Arrhenius concept है, it was put forward in 1884. कब ये दिया गया था? It was put forward in 1884. Remember, first of all, ये क्लासिकल है, ये तो
सदियों से चला आ रहा है, सिंस सेंचुरीज एवरीबॉडी नो व्हाट इज ए एसिड और बेस, उसके फिजिकल फीचर देखें। अब जो एरिनस कंसेप्ट था दैट हैज साइंटिफिक बेस, ठीक है। सो फर्स्ट ऑफ ऑल इट वाज गिवन बाय एरिनस इन 1884। अब उसने क्या कहा, एरिनस थ्योरी क्या बताती है? वो कहती है कि when a electrolyte is dissolved in water, अब जब वो डिसॉल्व किया जाएगा वाटर में, इट डिसोसिएट्स इनटू पॉजिटिवली और नेगेटिवली चार्ज आयंस। पॉजिटिवली और नेगेटिवली चार्ज आयंस में ये डिसोसिएट हो जाएगा। एंड अगर वो डिसोसिएशन, अब उसके अकॉर्डिंग जब डिसोसिएशन हो जाएगा तो एन एसिड, व्हाट इज एसिड देन अकॉर्डिंग टू एरिनस? An acid is a substance which contains hydrogen. Acid contains hydrogen. और ये हाइड्रोजन ऑन डिसोसिएशन क्या कर देगी? ऑन डिसोसिएशन, ठीक है, जब ये डिसोसिएट हो जाएगा एक्वस सॉल्यूशन में, ऑन डिसोसिएशन इट गिव्स हाइड्रोजन आयंस H पॉजिटिव, राइट। सो एसिड क्या देगा भाई? H पॉजिटिव आयंस, प्रोटॉन भी कह देते हैं हम उसको, एंड हाइड्रोनियम आयंस, और क्या देता है ये? H3O पॉजिटिव हाइड्रोनियम आयंस, हाइड्रोजन एंड हाइड्रोनियम। ये जो पॉजिटिव आयन रिलीज करेगा जो पार्ट, वो एसिडिक पार्ट है, इट इज अ एसिड, ठीक है। एंड जैसे कि देखिए फॉर एग्जांपल वी हैव HCl। HCl व्हेन डिसोसिएटेड इन एक्वस सॉल्यूशन, ठीक है, जब ये डिसोसिएट किया जाएगा, डिकम्पोज हो जाएगा, इट विल गिव H पॉजिटिव प्लस Cl नेगेटिव। सो ये क्या है? H पॉजिटिव दिया, सो HCl इज एसिडिक इन नेचर। रिमेंबर दिस थिंग, HCl इज एसिडिक, एसिड है ये। Then we have H2SO4 सल्फ्यूरिक एसिड। भाई क्या हो जाएगा? 2H पॉजिटिव बाहर आ जाएंगे एंड SO4 2 नेगेटिव। वैलेंसी भी ओके करनी है बिकॉज सॉल्ट इज ऑलवेज न्यूट्रल। सो H पॉजिटिव कितने निकले? 2, बट कौन निकले? H पॉजिटिव आयंस। सो इट इज ऑल्सो एन एसिड, राइट। इसी तरह हम अगर एरिनियस के केस में बेस की बात करें, राइट, सो व्हाट इज अ बेस? बेस कंटेन्स, बेस लिखिए बेटा, बेस कंटेन्स हाइड्रोक्सिल ग्रुप। हाइड्रोक्सिल ग्रुप क्या होता है? OH नेगेटिव, ठीक है। फॉर अगर OH नेगेटिव ये दे रहा है तो ये डिसोसिएशन पे देगा, तो ये बेस है। अब इसकी एग्जांपल देख लीजिए, फॉर एग्जांपल वी हैव NaOH। जब ये एक्वस सॉल्यूशन में डिसोसिएट होगा, ये देगा Na पॉजिटिव प्लस OH नेगेटिव। अब OH नेगेटिव आ गया आपके सामने, सो ये क्या है? हाइड्रोक्सिल आयन, ये मिल गया, तो ये NaOH इज अ बेस। सिमिलर केस इज विद KOH, पोटेशियम हाइड्रोक्साइड। So K positive and OH negative, and it shows KOH is also a base, right? इसी तरह बाकी भी सब्सटेंस है आपके पास। अमोनियम हाइड्रोक्साइड है, इट इज अ बेस, क्योंकि ये भी वही देगा। अमोनियम हाइड्रोक्साइड, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, ठीक है, मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड, these are all examples of bases according to Arrhenius concept. What he has mentioned, we are discussing this, right? Then we have Bronsted-Lowry concept. Bronsted-Lowry concept जो है, उसकी जो language है, what it states, it tells you that acid is a chemical substance which gives or which donates a proton or hydrogen ion. So
acid is a chemical substance which donates a proton or hydrogen ion. राइट और इसी तरह अगर बेस की लैंग्वेज की बात की जाए कि इसमें बेस की बात की जाए कि बेस क्या होगा, सो इट टेल्स बेस ऑन द अदर हैंड, ब्रॉन्स्टन-लॉरी क्या कहता है, बेस इज ए केमिकल सब्सटेंस, बेस इज ए केमिकल सब्सटेंस व्हिच क्या करेगा, सोचिए जरा, बेस उसके उल्टा हो जाएगा भाई, बेस क्या करेगा अब, इट इज ए केमिकल सब्सटेंस व्हिच विल एक्सेप्ट, यस ठीक है, एक्सेप्ट ए प्रोटॉन और हाइड्रोजन आयन, एक्सेप्ट अ प्रोटॉन और हाइड्रोजन आयन, ये इसको एक्सेप्ट करेगा। अब एक्सेप्ट करेगा, पॉजिटिव चीज को एक्सेप्ट करेगा मींस बेस हैज अ लोन पेयर ऑफ अनबॉन्डेड इलेक्ट्रॉन्स, राइट, एंड उसी तरह एसिड क्या हो जाएगा, प्रोटॉन को क्या कर रहा है, एसिड डोनेट कर रहा है, ठीक है, सो उसके पास क्या है, एक्सेस में, ठीक है। अच्छा नेक्स्ट, अगर ब्रॉन्स्टन-लॉरी कॉन्सेप्ट को हम डिस्कस करते हैं तो क्या होगा, इट स्टेट्स दैट अ सब्सटेंस फंक्शन एज एन एसिड ओनली इन प्रेजेंस ऑफ बेस, ये इसकी मेन चीज है, एन एसिड और a substance function as an acid only in presence of base, ये इसका मेन पॉइंट है, ये याद रखिएगा, राइट, और ये कंजुगेट एसिड बेस पेयर बना देता है, राइट। नाउ हम देखते हैं ये कैसे होता है, फॉर एग्जाम्पल वी हैव NH4 पॉजिटिव, क्या है ये, इट इज अमोनियम आयन NH4 पॉजिटिव प्लस वाटर, सॉल्यूशन में इट इज रिवर्सिबल रिएक्शन, राइट, रिवर्सिबल है ये रिएक्शन, और H3O पॉजिटिव हाइड्रोजन आयन बन गया भाई आपके सामने, एन अमोनिया NH3। सो इस तरह कंजुगेट एसिड बेस पेयर बनता है। अब एक बात आपको बता देते हैं कि जो वाटर है इट एक्ट्स बोथ, राइट, इट एक्ट्स बोथ एज ब्रॉन्स्टन-लॉरी एसिड एज वेल एज ब्रॉन्स्टन-लॉरी बेस, ठीक है। अब HCl प्लस NH3 को रिएक्ट करवाइए, HCl प्लस NH3, लुक एट दिस रिएक्शन, हाइड्रोक्लोरिक एसिड को अमोनिया से रिएक्ट करवा रहे हैं, NH4 पॉजिटिव आ जाएगा प्लस Cl नेगेटिव, तो ये सारा खेल क्या है, इलेक्ट्रॉन पेयर को और प्रोटॉन को कह लो, प्रोटॉन को एक्सेप्ट करना या डोनेट करना, राइट। सो दिस इज ऑल अबाउट ब्रॉन्स्टन-लॉरी कंसेप्ट। नाउ वी हैव ल्यूइस कंसेप्ट, ठीक है, ब्रॉन्स्टन-लॉरी भी 1923 में आया है भाई, नोट डाउन, एंड ल्यूइस कंसेप्ट भी इट वाज पुट फॉरवर्ड इन 1923 इटसेल्फ। अब ये ल्यूइस कंसेप्ट क्या कहता है, Lewis acid is a substance, so acid is a
सब्सटेंस। ल्यूइस की टर्म में हम अब एसिड को समझने की कोशिश करेंगे कि क्या है। सो ल्यूइस कहता है कि एसिड इज ए सब्सटेंस which accept a pair of non-bonding electrons, which accept a pair of non-bonding electrons. This is what is said by Lewis. ठीक है? सो ये एक्सेप्ट करेगा तो ये क्या हुआ, ये लोन पेयर एक्सेप्टर हुआ, राइट? इलेक्ट्रॉन पेयर एक्सेप्टर हुआ। एसिड इज इलेक्ट्रॉन पेयर एक्सेप्टर, याद रखिएगा। एंड बेस इससे उल्टा हो जाएगा, ठीक है बच्चों? So base is a substance that can donate, right, a pair of non-bonding electrons. Base is a substance which can donate a pair of non-bonding electrons। दूसरी टर्म में क्या कहेंगे हम? बेस इज अ इलेक्ट्रॉन पेयर डोनेटर, राइट? और डोनर। बेस इज इलेक्ट्रॉन पेयर डोनर, राइट? तो अब देखिए, हमेशा ल्यूइस एसिड और बेस का जो रिएक्शन है, ये हमेशा कोऑर्डिनेट बॉन्ड वाला कंपाउंड जनरेट करता है। फॉर एग्जांपल वी हैव BF3 रिएक्ट्स विद NH3, जिसके पास इलेक्ट्रॉन पेयर मौजूद है, अवेलेबल, ठीक है? इलेक्ट्रॉन पेयर इज अवेलेबल। BF3NH3, तो NH3 क्या करेगा? अपने बॉन्ड दोनों इलेक्ट्रॉन्स को शेयर करेगा, इसलिए NH3 से एरो BF3 की तरह लगाया गया। कोऑर्डिनेट बॉन्ड को शो करने के लिए हम हमेशा एरो लगाते हैं। तो हमारे पास चारों कंसेप्ट आ गए। क्लासिकल कंसेप्ट आपके पास आ गया, फिर आपके पास एरिनियस कंसेप्ट आ गया, फिर ब्रॉन्स्टर-लॉरी कंसेप्ट आ गया। अब क्लासिकल क्या कह रहा है? क्लासिकल सिंपल फिजिकल फीचर्स देख के, टच करके बता रहा है कि व्हाट इज एसिड। सार होता है, ठीक है? ब्लू लिटमस को रेड कर देता है एंड इट कंडक्ट्स इलेक्ट्रिसिटी। और बेस क्या है? सोपी इन टच होता है, बिटर होता है एंड रेड लिटमस को ब्लू कर देता है। व्हाट द ब्रॉन्स्टर एरिनस क्या कह रहा है? एरिनस H पॉजिटिव वाला कंसेप्ट आपके पास, H पॉजिटिव और OH नेगेटिव वाला कंसेप्ट दे रहा है। H पॉजिटिव डिसोसिएट होकर निकलेंगे, देन इट इज एसिड। OH नेगेटिव रिलीज होंगे ऑन डिसोसिएशन, देन इट इज बेस, राइट? ब्रॉन्स्टर-लॉरी ने कंसेप्ट दिया आपको प्रोटॉन का, ठीक है? एसिड इज ए केमिकल सब्सटेंस व्हिच डोनेट्स ए प्रोटॉन, ठीक है? और H पॉजिटिव। एंड बेस इज ए केमिकल सब्सटेंस व्हिच एक्सेप्ट प्रोटॉन। तो याद रखिए, H पॉजिटिव और OH नेगेटिव एरिनस कंसेप्ट, प्रोटॉन का कंसेप्ट ब्रॉन्स्टर-लॉरी कंसेप्ट, एंड इलेक्ट्रॉन पेयर का कंसेप्ट जहां है, दैट इज योर ल्यूइस कंसेप्ट। सो आई थिंक ये चारों कंसेप्ट आपको क्लियर हो गए होंगे। इनकी बहुत टाइप्स की एग्जांपल्स हैं, आप उनको रेफर कर सकते हो किसी भी बुक से, so that whenever something is asked in the exam, you are able to solve that given particular question very quickly and very accurately. I think it's easy, it's very easy, take it easy. Goodbye.